This formula is to get the probability using binomial distribution NCX P raised to X Q raised to N minus X, where N represent number of trials, P represent probability of success, and Q represent probability of failure. Now, as we know, P plus Q is 1. मतलब सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है इक्वल टू 1. तो अगर तुम्हें Q निकालना रहेगा, इट विल बी 1 माइनस P. Q will be equal to 1 minus P. Let's start. Question number 7. In a multiple choice test with 3 possible answers for each of the 5 questions, what is the probability of a candidate getting 4 or more correct answer by random choices? So we have 5 questions. So N is equal to 5. N is equal to 5. 5 question with 3 possible answer. तो 3 अगर आंसर है उसमें से एक करेक्ट रहेगा. तो probability of getting correct answer is your probability of success. Which is P, which is 1 upon 3. Then we have Q, which is probability of failure. Which is Q, 1 में से लेस कर देंगे तो मतलब 2/3 is failure. तो once we have N, P and Q, N, P, Q अगर मिल जाएगा तो we can use formula to find the probability. Probability of X का formula है NCX P raised to X Q raised to N minus X. So my N is 5, 5CX P 1/3 raised to X Q 2/3 raised to 5 minus X. This is what we have the probability. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या निकालना प्रोबेबिलिटी. सो हियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर. 4 और मोर तो मतलब बेसिकली योर एक्स विल बी 4 और मोर या तो 4 या तो उससे ज्यादा. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स आर इट कैन बी 4 और इट कैन बी 5. मतलब P of 4 और P of 5 दोनों को निकाल के ऐड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एक बार x के लिए 4 डालेंगे प्रोबेबिलिटी में तो इट विल बी 5C4 1/3 raised to 4 2/3 raised to 5 minus 4. तो 5C4 हो गया. अब 5C5 मतलब x के लिए 5 डालेंगे क्योंकि 4 और मोर बोला है. तो 5C5 1/3 raised to 5 and 2/3 raised to 5 minus 5. 5C4 will simplify 5 into 4 into 3 into 2. 4 into 3 into 2 into 1. 1/3 raised to 4 as it is. And this is 2/3. 5 minus 4 is 1. 5C5. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 1/3 raised to 5 as it is. And 2/3 raised to 0. Now cancellation करेंगे. 4 4 cancel 3 3 2 2. So it is left with 5. 1/3 raised to 4. 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81 into 2/3. ये 5 4 3 2 1 full get cancel. So it is 1 upon 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243.
और यहाँ पे जो है एनीथिंग रेस टू जीरो, बट एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1 होता है। तो फाइनल आंसर इज 5 2s are 10, 3 8s are 24, 243 अपॉन 1 अपॉन 243। डिनोमिनेटर सेम है, 243, 10 plus 1 11, so 11 upon 243 is the answer for question number 7. Now let's start with question number 8. Find the probability of throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die. Six throws of a single die. 6 throws हुए हैं. What I want? 6s. The probability of getting 6. Probability of getting 6 is my success. और जो भी सक्सेस या फेलियर निकाल दे फ्रॉम द 1 डाइस. Getting 6 is 1 out of 6, which is my P. Not getting 6, so probability of not getting 6. 6 नहीं चाहिए, तो that is my Q, failure होगा, which is 1 में से less कर देंगे P को, तो it is 5/6. We got these two value and we have n. एक बार तीनों values मिल गए तो I can write the formula for the probability, which is NCX P raised to X Q raised to n minus x. पूछा क्या है? What is the probability of throwing at most 2 sixes? मतलब तुमने जो 6 डाइस फेंके हैं उसमें मैक्सिमम 2 पे 6 आना चाहिए. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 2 मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या उससे कम, 2 से ज्यादा नहीं. So it will be the addition of 3 things: p of 0, p of 1 and p of 2. We'll add these 3 values. पहले p of 0 डालेंगे इस फॉर्मूले में. Six is 0, 1/6 raised to 0, 5/6, 6 minus 0 is 6. फिर 1 डालेंगे तो 6c1, 1/6 raised to 1 and 5/6 raised to 6 minus 1, which is 5. 6c2, 1/6 raised to 2, 5/6 raised to 6 minus 2 is 4. 6 is 0, 1, 1/6 raised to 0 is 1, so it is finally 5 raised to 6 upon 6 raised to 6. Then we have 6c1. 6c1 मतलब 6 को एक बार लिखेंगे upon 1. Then we have 1/6 raised to 1, and this is 5/6 raised to 5. And then 6c2, 6 into 5 into 2 into 1, and then 1/6 ka whole square, and then we have 5/6 raised to 4. वैसे इसको नॉर्मली सॉल्व करना, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है. व्हाट आई कैन डू हियर नाउ, सी दिस इज 5/6 द होल रेज टू 6. यहाँ पे ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 5/6 द होल रेज टू 5. यहाँ पे 6 ones are, sorry, 2 ones are 2 3s are 3 5s are 15. 15 into 1/36
into 5 by 6 raised to 4. I can take 5 by 6 raised to 4 common in all. तो अगर 4 रेज टू 4 कॉमन में आ गया, तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, रेज टू 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5 by 6 का स्क्वायर, रेज टू 4 गया तो 5 by 6 एक बार बचेगा, और ये पूरा चलेगा तो इट विल बी 15 by 36. फर्स्ट टर्म है 5 का स्क्वायर 25 by 36, it is 5 by 6 and it is 15 by 36. We'll make denominator same. सबके अपॉन में 36 कर देंगे तो ऊपर फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड में 6 का एडजस्टमेंट एंड थर्ड ऐसे ही रहेगा. तो 25 plus 15, 40 plus 30, 70. So your final answer is 70 upon 36, and this is 5 by 6 raised to 4, and that's our answer. So here we are completing the first step, first stage. इसमें second stage है, मतलब दूसरा टाइप के भी सम्स हैं. अब हम लोग वो स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. बट इसके लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूले दे, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यूनिक टाइप है तो इंपॉर्टेंट भी है. ध्यान सुनो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वैल्यूज दी रहेगी, तुम्हें कुछ अननोन रहेगी वो तुम्हें निकालनी रहेगी, और उसके लिए फॉर्मूले दिए हुए. we have n, we have p, we have q, and as all we know कि ये n p q क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सबसे पहला रिजल्ट तुम्हें ये पता ऑलरेडी p plus q1 होता है, तो इसका मतलब अगर q दिया रहेगा तो p निकाल सकते हैं, और इवन p दिया रहेगा तो q निकाल सकते हैं. इसके बाद तुम्हें दो फॉर्मूले पढ़ने हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है इट्स मीन. मीन को e ऑफ x बोलते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी. ये फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है. सेकेंड फॉर्मूला पढ़ना है वेरियंस, विच इज VAR, वेरियंस ऑफ x. इसका फॉर्मूला होता है NPQ. एंड द लास्ट पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज रूट ऑफ वेरियंस. बस. तो तुम्हें ये तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं फॉर द 9th क्वेश्चन. E of x, variance of x, and SD of x. E of x is my NP, variance of x is NPQ, and SD is my variance, root of variance. Now I shall start with question number 9. Easy question is sir. Given that x follows binomial distribution with n and p, if first question, ध्यान से देखो, n is 10, p is 0.4, e of x and v of x निकाल. n is 10, p is 0.4. तो एक काम करो, जैसे तुम्हें p मिल जाएगा वैसे q निकालो. q क्या रहेगा, 1 में से लेस कर देंगे p को. 1 minus 0.4 which is 0.6. तो मेरे पास n, p, q तीनों अवेलेबल है. सो आई कैन कैलकुलेट e of x, दैट इज मीन. e of x का फॉर्मूला है n इंटू पी. 10 इंटू पी की वैल्यू 0.4. 10 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा. दूसरा बोला है वेरिएंस ऑफ x. वेरिएंस ऑफ x होता है NPQ. n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q. बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2.24 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.4. तो ये मेरा हो गया वेरिएंस ऑफ x. दिस इज व्हाट वी हैव द वेरिएंस ऑफ x. दैट्स इट. तो कैलकुलेशन काफी इजी है, ऐसे ही सम्स करने हैं. बस ये तीन फॉर्म में पढ़ने हैं तुम्हें, और एक ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए. सेकेंड, if p 0.6 दिया है, इस बार e of x मतलब मीन लिख के दे दिया है. फाइंड
n एंड वेरिएंस ऑफ x निकालना है। सबसे पहले p दिया तो मैं यहाँ से q निकाल लेता, विच इज 1 माइनस। ओके, नहीं रहेगा तो भी निकाल के कैलकुलेट कर लो। अब ध्यान सुनो, e ऑफ x क्या दिया है 6, जो गिवन इसमें अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ np इज इक्वल टू 6, तो n वी डोंट नो, p की वैल्यू 0.6, तो n इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 0.6, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/6 विच इज 10, तो फाइनली n वी गॉट एज 10। तो e ऑफ x अगर गिवन रहेगा तो n निकाल सकते हो उससे। इन द लास्ट वेरिएंस ऑफ x निकालना है। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है n p q, n p एंड q। फिर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2.4 आएगा, विच इज माय वेरिएंस ऑफ x। थर्ड, if n is equal to 25, e of x is equal to 10, find p and variance of x। p कैलकुलेट करना और वेरिएंस ऑफ x, अगेन द सेम फॉर्मूला। सबसे पहले e ऑफ x का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज n इंटू p। e ऑफ x 10 दिया है, n 25 दिया है, और p निकालना है। तो p will be equal to what, 10 divided by 25, 5 2 जा 5 5 जा, that is 2/5 p की वैल्यू है। अगर p 2/5 है तो अगर तुम्हें q निकालना है तो लेस कर देंगे, 1 माइनस p, 1 माइनस 2/5, 3/5, दैट इज माई q की वैल्यू। और तुम्हारे पास अगर p और q पता रहेगा और n दिया हुआ है तो वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है n p q। n is my 25, p is my 2/5, q is my 3/5। 5 ones are 5 5s are, और इवन ये 5 भी कैंसिल, 3 2s are 6। So variance of x is what, 6। The last question be similar as third question है, so that is for practice. So here we are completing this third exercise. So the next exercise is based on again probability, but this time we have a new formula, new method, and this is called as Poisson distribution. And comparatively उससे काफी easy है Poisson distribution। यहाँ पे भी फॉर्मूला है, इसके पहले मैंने जो किया था that was binomial distribution, now it is Poisson distribution। इसमें भी probability ही निकालना है, which is p of x। probability का फॉर्मूला है e raised to minus m raised to x upon x factorial, that's it। तो Poisson distribution का फॉर्मूला है, it is e raised to minus m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल। याद कर लो, e raised to minus m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें बस तुम्हें m पता होना चाहिए, एंड m इज कॉल्ड एज मीन। और अगर मीन या तो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मीन इतना है, अगर नहीं दिया रहा तो विल यूज द फॉर्मूला n इंटू p, बाइनोमियल वाला, ठीक है। तो m इज कॉल्ड एज मीन और कॉल्ड एज एवरेज। अगर तुम्हें एवरेज पता रहा तो तुम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। द फॉर्मूला इज e raised to minus m raised to x upon x factorial। क्वेश्चन में तुम्हें e raised to minus m दिया रहेगा और क्वेश्चन में पॉइजन वर्ड भी यूज किया रहेगा, तो मतलब इजी है। बाकी मेथड फंडामेंटल सब सेम है। आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 8.4।
एंड कंपेरेटिवली ये बाइनोमियल से काफी इजी भी है. एक्सरसाइज 8.4. 8.4. If X has the Poisson distribution, X is a Poisson distribution with M equal to 1, that is mean is equal to 1. Find probability of X less than equal to 1 given that. और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा पॉइजन में कुछ ना कुछ E की वैल्यू दी रहेगी. स्टार्ट कैसे करेंगे ध्यान सुनो. सबसे पहले क्वेश्चन में ये है पॉइजन के लिए तुम्हें मीन पता होना चाहिए. For Poisson distribution you must know the value of mean. तो M is equal to 1 दिया हुआ है. जैसे तुम्हें मीन मिल जाएगा सीधे फॉर्मूले में पुट अप कर दो. यहाँ पे मीन ऑलरेडी दिया हुआ था तो फॉर्मूले में पुट अप करेंगे. E raised to minus m into m raised to x upon x factorial. E raised to minus 1 1 raised to x. बस अभी x पुट अप करना. दैट्स इट. क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है. प्रोबेबिलिटी बोला है x लेस देन इक्वल टू 1. तो स्टार्ट कैसे. लेस देन इक्वल टू मतलब कौन कौन सी वैल्यू आएगी. एक 0 आएगा और एक 1 आएगा. तो पहले 0 पुट अप करेंगे तो e रेज टू माइनस 1 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. e रेज टू माइनस 1 1 रेज टू 1 x की वैल्यू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. ठीक है. e रेज टू माइनस 1 वैसे ही रहने दो. एंड में वैल्यू पुट अप करेंगे. एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है याद रखो. 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1 होता है ये भी याद रखो. e raised to minus 1 into 1 e raised to minus 1 ही आएगा आंसर पहले का. और दूसरे का भी e raised to minus 1 which is 2 times of e raised to minus 1. तो 2 times of e raised to minus 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी 0.3678. तो वो पुट अप कर देंगे एंड देन ब्रैकेट ओपन. 0.7356 and that's my answer. Probability of x. जिसमें probability निकालना बहुत इजी है. बस ध्यान से. सेकंड क्वेश्चन. x follows Poisson distribution with 1.2. Then find probability of x is equal to 3. तो सबसे पहले याद रखो ये मुझे फाइंड आउट करना है. स्टार्ट कैसे करेंगे. x follows Poisson distribution. ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी दैट इज माय m मीन. तो अगर तुम्हें मीन मिल गया तो आई कैन यूज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ x का e रेज टू माइनस m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. क्या फॉर्मूला है. e रेज टू माइनस m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. x की वैल्यू क्या पुट अप करनी है इसमें 3. विल सब्स्टिट्यूट 3. सिंप्लीफाई करेंगे. e raised to minus 1.2 is given in the question. अच्छा इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे e raised to minus 0.5 दिया. इसका मतलब ये 1.2 नहीं 1/2 दिया हुआ. क्वेश्चन करेक्शन है यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है. अदरवाइज वैल्यू हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे. देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन. m 1 पॉइंट नहीं बल्कि 1/2 दिया हुआ है. m इज माय व्हाट 1/2. 1/2 मतलब 0.5 दिया हुआ है. मीन मिल जाएगा तो फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे. e रेज टू माइनस m m रेज टू x x फैक्टोरियल. मुझे x के लिए क्या पुट अप करनी है 3. e रेज टू माइनस 0.5 0.5 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. e रेज टू माइनस 0.5 की वैल्यू दी है 0.6065.
0.65 0.5 का क्यूब 0.125 and 3 factor 3 into 2 into 1 बस अभी कैलकुलेट करना है ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 0.06 0.6065 and divide by 6 0.01263 that's my that's it 0.01263 that's it now here I'm going to start with a new thing where we are using complement law अब ये क्या होता है एक बार ध्यान से नो as we all know sum of all probability is equal to 1 sum of all probability is equal to 1 और मेरे पास n is equal आई एम सेइंग मेरे पास 5 ट्रायल है तो 5 ट्रायल मतलब बेसिकली अगर x की वैल्यू में 0 1 2 3 4 एंड 5 सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है एज वी ऑल नो अगर मुझे क्वेश्चन बोला है कि मुझे बस p ऑफ 2 से लेके p ऑफ 5 कैलकुलेट करो p ऑफ 2 से लेके p ऑफ 5 मुझे अगर ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो बेटर वे इन दोनों को वहां ट्रांसफर कर दो 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है अगर तुम्हें p ऑफ 2 से लेके p ऑफ 5 तक कैलकुलेट करना है वैल्यू तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस वैल्यू 2 3 4 5 व्हाट वी कैन डू 1 माइनस जो वैल्यूज बच गई है मतलब p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 इनिशियल जो वैल्यूज बच गई वो वहां पे लिख देंगे दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ सपोज अगर मुझे दूसरे वे में अगर ऐसा बोला p ऑफ 1 से लेके p ऑफ 5 तक निकालना है p ऑफ 1 से लेके p ऑफ 5 p ऑफ 3 p ऑफ 4 और p ऑफ 5 p ऑफ 1 से लेके p ऑफ 5 तो 0 को वहां ट्रांसफर करेंगे दैट इज 1 माइनस p ऑफ 0 मतलब तुम्हें जितनी वैल्यूज निकालनी है 1 से लेके 5 तक मतलब वहां से लेके एंड तक जितने वैल्यू निकालनी है उसके पहले की जो भी वैल्यूज रहेगी वहां ट्रांसफर कर दो एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ अभी कैसे यूज करना है आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 Question number 3 if x has a Poisson distribution with parameter m and probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3 then find probability of x greater than equal to 2 इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो बोला है बट m की वैल्यू नहीं दिया है सो इन दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थर्ड क्वेश्चन अभी m कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो दो प्रोबेबिलिटी इक्वल दिया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 ये दो प्रोबेबिलिटी इक्वल दिया एंड इट इज गिवन एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज e raised to minus m raised to x upon x फैक्टोरियल यहाँ पे e raised to minus m
m रेज टू x की वैल्यू दिया है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल e रेज टू माइनस m रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e रेज टू माइनस m कैंसल m square 2 factorial is 2 into 1 that is 2 3 factorial is 3 into 2 into 1 that is 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 into m square 2 into m cube 2 ones are 2 threes are 3m square equal to m cube देखा जाए तो यहाँ पे m square मीन्स m into m 2m है और यहाँ पे 3m है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 is equal to m so finally we got the value of m as 3 m is equal to 3 we got m is equal to 3 मीन मिल गया तो हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला में पुटअप करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल e रेज टू माइनस 3 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मुझे बोला है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये प्रोबेबिलिटी निकालना है x is greater than 2 we have to calculate तो x is greater than 2 मतलब basically it is 2 3 4 greater than 2 मतलब it is we don't know the limit कहाँ तक जाना है तो instead of finding these value I will use complement law because we know sum of all probability is equal to 1 तो 1 में से जो remaining values है वो लेस कर देंगे मतलब p of 2 के पहले जो वैल्यूज आ रही है it is p of 0 and p of 1 तो जब भी ग्रेटर देन आया और अगर इनफाइनाइट वैल्यू है अगर 2-3 रहा तो निकाल सकते लेकिन अगर इनफाइनाइट वैल्यूज है तो विल यूज कॉम्प्लीमेंट लॉ दिस इज नोन एज व्हाट कॉम्प्लीमेंट लॉ सो p of 0 एंड p of 1 कैलकुलेट करेंगे p of 0 एंड p of 1 p of 0 मतलब x के वैल्यू 0 पुटअप करेंगे दैट इज इसमें ही प्रोबेबिलिटी में तो इट इज e रेज टू माइनस 3 रेज टू 0 और x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे e रेज टू माइनस 3 रेज टू 1 e raised to minus 3 anything raised to 0 is 1 0 factorial is 1 3 raised to 1 is 3 and 1 factorial is 1 so finally it is e raised to minus 3 and it is 3 times of e raised to minus 3 add हो जाएगा तो it will be 4 times of e raised to minus 3 4 times of e raised to minus 3 की value will substitute 0.049 and 7 मल्टीप्लाई करेंगे 0.1988 और लेस कर देंगे 0.8012 this is probability of x greater than or equal to 2 that's our answer ठीक है तो ग्रेटर देन के लिए हमेशा याद रखो विल यूज कॉम्प्लीमेंट लॉ ओवर हियर लेस देन रहा तो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे इफ इट इज ग्रेटर देन विल यूज कॉम्प्लीमेंट लॉ नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4
Okay. Now question number 4. The number of complaint which a bank manager received per day follows a Poisson distribution. Word आ गया Poisson distribution with parameter, मतलब मीन दिया है 4. मतलब फोर्थ क्वेश्चन में मुझे मीन मिल चुका है which is given as 4. Find the probability that manager receives only 2 complaint on a given day, at most 2 complaint on a given day. तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो पहले जैसे मीन मिल जाएगा और पॉइजन वर्ड यूज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का फॉर्मूला e raised to minus m raised to x upon x factorial. So it is e raised to minus 4 raised to x upon x factorial. अब x पूछा है कि x की वैल्यू क्या पुटअप करना है. ओनली 2 कंप्लेंट, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना x इज इक्वल टू ओनली फॉर 2. तो x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. e रेज टू माइनस 4 रेज टू 2, जहां जहां x है वहां 2 डाल देंगे. विल सिंप्लीफाई. e रेज टू माइनस 4 का स्क्वायर एंड 2 का फैक्टोरियल इज 2, कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2 8 जा 8 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस 4. e रेज टू माइनस 4 इज गिवन इन द क्वेश्चन और वैल्यूज दी रहेगी, याद रखना 0183. तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.1464. Second, at most 2 complaint on a given day. At most मतलब मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2. तो मैक्सिमम तो मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो इस बार 3 बार डालना वैल्यूज, तो इसी फॉर्मूले में x की वैल्यू 3 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे. e रेज टू माइनस 4 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. e raised to minus 4 raised to 1 upon 1 factorial. e raised to minus 4 raised to 2 upon 2 factorial. Now we'll simplify. e raised to minus 4 raised to 0 1, 0 factorial is also 1. e raised to minus 4 raised to 1 is 4, 1 factorial is 1. e raised to minus 4 का स्क्वायर is 16 and 2 factorial is 2. सब में e raised to minus 4 कॉमन आ रहा है, इट इज 1. कॉमन में जाएगा तो 4 और कॉमन में जाएगा तो 16/2 8. तो इसको कैलकुलेट करना काफी इजी है. e रेज टू माइनस 4 बाहर, 8 + 4 12, 12 + 1 13. विल मल्टीप्लाई 13 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू 0.0183. मल्टीप्लाई कर देंगे. टू 3 तो 0.2379. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ठीक है. देन वी हैव 5th. A car firm has 2 cars which are hired out day by day. The number of cars, card लिखा है गलत है, D नहीं है. The number of cars hired on a day follow Poisson distribution with mean दे दिया है 1.5. Find the probability that no car is used on a given day. Second, some demand is refused on a given day. तो 2 क्वेश्चन पूछा प्रोबेबिलिटी के लिए. तो फर्स्ट, अ कार फर्म हैज 2 कार और क्वेश्चन बोला इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1.5. मतलब क्वेश्चन में m की वैल्यू दे दी 1.5. m दे दिया मतलब आई कैन यूज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी व्हिच इज e रेज टू माइनस m raised to x, that is 1.5 raised to x upon x factorial. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि नो कार इज यूज्ड, मतलब मेरे पास 2 कार है लेकिन कोई कार यूज नहीं हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. तो x की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे. तो e रेज टू माइनस 1.5, ये a का आंसर है. नो कार इज यूज्ड इनटू 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. e raised to minus 1.5, anything raised to 0 is 1, 0 factorial is 1. तो आंसर आएगा e raised to minus 1.5 only, and whose answer is
0.2231 डन। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। इसमें सेकंड पूछा बी पार्ट, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन अ गिवन डे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब डिमांड रिफ्यूज हो रही है, इसका मतलब ये सपोज मेरे पास मतलब अ कार फार्म हैज टू कार, मतलब मेरे पास दो कार है। अगर डिमांड समझो बोला किसी ने ऑर्डर दिया मुझे एक कार चाहिए ऑन हायर, तो आई कैन गिव हिम कि उसे एक ही कार चाहिए। किसी ने बोला दो कार चाहिए, इवन आई कैन गिव हिम बिकॉज मेरे पास दो कार अवेलेबल है, तो मैं बोलूंगा ठीक है नेक्स्ट डे तुम ले लो दो कार। लेकिन अगर किसी ने बोला कि मुझे तीन कार की रिक्वायरमेंट है, तो तीन कार की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ दो ही दूंगा। अगर मेरे पास अवेलेबल, मैं बोल दूंगा कि मेरे पास तीन कार नहीं है, तो वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास जो डिमांड है अगर वो नंबर ऑफ कार से ज्यादा है, तो डेफिनेटली तुम बोलोगे कि नहीं मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव टू रिफ्यूज बाय एनी हाउ। इसका मतलब अगर डिमांड रिफ्यूज रहा है, इसका मतलब जो डिमांड आ रहा है वो ग्रेटर देन टू होना चाहिए, तभी डिमांड रिफ्यूज होगा। तो सेकेंड केस में बी पार्ट में इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू निकालना है। ग्रेटर देन टू मतलब 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे हियर आई विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड सो ऑन निकालना है। बट अगेन ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो विल यूज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। 3 तो ऑलरेडी है तो वो नहीं इंक्लूड करेंगे, 2 तक ही निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस पी ऑफ 0 मतलब एक्स के लिए 0 डालेंगे, 1.5 1.5 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 1 डालेंगे 1.5 1.5 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 2 डालेंगे 1.5 1.5 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सबकी वैल्यूज इवेल्युएट करेंगे, सब में ई रेस टू माइनस 1.5 में कॉमन ले ले रहा हूँ। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, ये कॉमन में जाएगा। ऊपर 1.5 1 फैक्टोरियल इज 1, ये कॉमन में जाएगा। 1.5 का स्क्वायर 2.25 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। 1 divided by 1 is 1, 1.5 divided by 1 is 1.5 एंड 2.25 divided by 2 करेंगे तो इट इज 1.125। तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1.5, ब्रैकेट को ऐड कर लेते 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3.625। नाउ it is 3.625 मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस 1.5 जिसकी वैल्यू दी है 0.2231 0.80। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू दी है 0.2231 मल्टीप्लाई बाय 3.625। तो इट इज 1 माइनस आंसर आएगा 0.8087375। 1 में से माइनस कर देंगे, इतना फिगर नहीं लेना है, 4 फिगर सफिशिएंट है। 87 फिर लेस कर देंगे तो 10 माइनस 7 3 0.1913 इज द आंसर। यहाँ पे एवरेज दिया है 1 फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स फॉर्मूला ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। क्वेश्चन बोला नो डिफेक्ट, नो डिफेक्ट का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू 0 पुट अप करना है। इट विल बी e raised to minus 1 into 1 raised to 0 upon 0 factorial। e raised to minus 1 0.3678, anything raised to 0 is 1, 0 factorial is also 1, तो आंसर आएगा 0.3678। दिस इज माय आंसर।
नाउ बी का पार्ट है एटलीस्ट वन डिफेक्ट, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम वन या उससे ज्यादा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इट विल बी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड डॉट डॉट। तो अगेन इनफाइनाइट आ रहा, तो वन माइनस जो बच गया एलिमेंट स्टार्टिंग के वाले विच इज पी ऑफ जीरो ओनली, बट पी ऑफ जीरो तो मैंने ऑलरेडी निकाला है फर्स्ट पार्ट में 0.3678, सो हियर आई कैन राइट द वैल्यू डायरेक्टली, अगर तुम्हें वैल्यूज पता है तो 3678 लेस कर देंगे 0.6322। Now seventh question. It is known that in a certain area of a large city, the average number of rats per bungalow is 5. Average number of rat, average मतलब mean दे दिया है, तो seventh question में mean is given as 5. Assuming that the number of rat follows, again Poisson distribution का समय, find the probability that a randomly selected bungalow has exactly 5 rat. मतलब फर्स्ट केस में बोला प्रोबेबिलिटी निकालो, x की वैल्यू 5 पुट अप करो। सेकेंड, मोर देन 5 रेट्स मतलब बेसिकली x इज ग्रेटर देन 5, मोर देन 5। बिटवीन 5 एंड 7 रेट इंक्लूसिव, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें x की वैल्यू 5 और 7 के बीच में है। इंक्लूसिव मतलब 5 और 7 को भी इंक्लूड करना है। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट दीज थ्री प्रोबेबिलिटी। Here we have to calculate these three probability. So let's start. पहले फॉर्मूला पुट अप कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। नाउ फर्स्ट केस में बोला है कि x की वैल्यू 5 पुट अप करना है। x की वैल्यू क्या पुट अप करना है? 5। So let's substituting the value for a part. x की वैल्यू 5, e raised to minus 5, 5 raised to 5 upon 5 factorial. E raised to minus 5 is given 0.0067. 5 raised to 5, 5 5 are 25, 5 are 125, 5 are 625, 5 are 3125. 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120. Okay, so now we need to calculate. ऊपर multiply कर देंगे, जो आंसर आएगा divide by 120. So it is 3125, 0.0067, 20 point, and divide by 120. 0.1744 या 1745, तो 0.1745, दिस इज ए का आंसर। नाउ बी का आंसर, बी का आंसर इज x इज ग्रेटर देन 5 बोला है, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से ग्रेटर मतलब 6 7 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे से कैलकुलेट नेक्स्ट पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 बोला है, ग्रेटर देन 5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 एंड सो ऑन। बट फिर अभी ये निकालने से विल डू 1 माइनस रिमेनिंग, probability of 0, probability of 1, probability of 2, probability of 3, probability of 4 and probability of 5। हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं। 1 माइनस एक्स के लिए 0 डालेंगे, तो e रेज टू माइनस 5, 5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 5, 5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू माइनस 5, 5 रेज टू 2
e raised to minus 5, 5 raised to 3, 3 factorial, e raised to minus 5, 5 raised to 4, और e raised to minus 5, 5 raised to 5. ओके, लेट्स कैलकुलेटिंग। सब में e raised to minus 5 बाहर आ जाएगा। 5 raised to 0 1, 0 factorial is 1, 5 raised to 1 1, 1 factorial is 1, e raised to minus 5 कॉमन, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, 5 का क्यूब 125 अपॉन 6, 5 raised to 4 625 divided by 24, and this is 3125 divided by 120. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, e raised to minus 5 बाहर ऐसे ले लो, सबका एलसीएम है 120 ना। पहले जो छोटे पार्ट उनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 5 ये हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर 6 कर देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 3 सा 75, 75 + 125 विच इज 200/6, और लास्ट में यहाँ पे 24 और ये 120, फाइजा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3125, 3125, और ये भी 3125 है, मतलब 6250 डिवाइड बाय 120। अब सबका डिनोमिनेटर 120 कर लेते हैं। अगर सबका डिनोमिनेटर 120 करेंगे तो यहाँ 120 से मल्टीप्लाई 720, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 × 200 विच इज 4000 + 6250, तो 6 + 4 10,000, and 10,250 + 720, so it will be 0, 5 + 2 7, 2 + 7 9, 6 + 4 10, 10 970 upon 120। अब वैल्यूज आगे बस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है। 1 - e raised to minus 5 was 0.0067 into 10970 divided by 120, तो 0.0067 multiplied by 10970 and divide by 120, 0.6123, 0.6123, और लेस कर देंगे तो 0.10 - 3 7, 9 - 2 7, 8 2, 0.9 - 6 3, सॉरी, तो 0.3877, 3877 इज योर आंसर। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया जिसका मैं हिंट दे रहा हूँ, वो भी इजी है कंपेरेटिवली। बोला है 5 और 7 के बीच में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लेस देन x लेस देन 7, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तीनों का अलग अलग निकालना है। तो तीनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने सबका यूज किया, 5 का सबका यूज करेंगे, सब में कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन फिर इजी हो जाएगा, और जो भी रहेगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके जो आएगा फाइनल आंसर दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे अपना मैथ्स 2 कंप्लीट होता है विथ ऑल चैप्टर्स।